Welcome to Marketing Simplified, your step-by-step guide for marketing officer exams. My name is Saurabh Juneja, and in this series of videos, I'm going to take you through the book of Principles of Marketing's latest edition by Mr. Philip Kotler. So if you're preparing for IBPS SO marketing officer's examination or any other marketing officer examination for any public sector enterprise, this is the series for you to follow. तो यदि आप IBPS SO मार्केटिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए या फिर किसी भी मार्केटिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए स्केल 2 या स्केल 3 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए मस्ट है। दिस वीडियो सीरीज हैज अ चैप्टर वाइज कवरेज फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। तो इस वीडियो सीरीज में चैप्टर वाइज कवरेज है सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का इस किताब के। Also, these videos will be explained in two languages, Hindi and then English. साथ ही साथ सारे के सारे वीडियोस में दोनों भाषाओं में कवर करूंगा, इंग्लिश और बाद में हिंदी। तो सारे वीडियोस में पहले इंग्लिश होगा और वही एक्सप्लेनेशन बाद में हिंदी में होगा। So all the videos will have the explanation in Hindi followed by the same explanation in Hindi language. So you can follow me on Telegram, YouTube, and you can also download our application from Play Store and visit our website and on other social media platforms. All the very best, and let's get started. So guys, this is going to be part 2 from chapter number 1. Chapter number 1 is again creating customer value and engagement, and in this session we will be understanding modern marketing system. We'll also understand the very term marketing myopia. Before we talk about marketing myopia or the modern marketing concept, we should basically understand what is a market offering. So a market offering or market offerings is a combination of products, services, information, or experiences offered to a market to satisfy any need or a want, right? So it could be products, it could be services, it could also be information or experiences, right? So consumers' needs and wants are fulfilled through market offerings. Market offerings are specifically designed to fulfill the needs and wants of the consumers. Now these offerings can be pure products, these can be pure services. Pure products means maybe a soap bar or maybe a toothpaste. Pure services means consultancy services or a combination of them. Just like you visit a restaurant and then you have a meal, so it is a combination of the food that you eat and the services that you consume, right? Information is something like you reading a newspaper or you're going through any information on Google, something like that, right? It's a combination of them which basically gives you experiences or offer to make to satisfy a need or a want. So we can say that market offerings are not only limited to physical products, but they also include services. I've already given you examples like banking, airline, hotel, retailing, and other repair services, right? So we can broadly say that marketing offerings also include other entities like persons. Yes, so if you're availing services from a person in specific, maybe you're enjoying a stand-up show. So basically that's a person basically delivering you the services. Place, organizations, information, and ideas. All of these will comprise of market offerings. So let's understand what is marketing myopia. Marketing myopia is short-sightedness in marketing, which is a common mistake that marketeers make. Why? Because they are paying extreme attention to the specific product and not to the experiences that the products basically provide. So marketeers are so taken with their products that they focus only on the existing wants and lose the sight of the underlying consumers' needs. For example, if I'm manufacturing tires, what am I thinking? So if I will be a marketer who is facing marketing myopia, will see that I'm only manufacturing tires. That's it. But actually, the customer is not wanting tires. He wants good ride quality, good ride comfort, and good control when he's driving his vehicle. So if the marketer understands that he's not selling tires, he's selling ride quality, ride comfort, and control for the people driving a vehicle. That's what basically takes him further, right? So these sellers will be facing trouble if a new product comes along and that serves the consumer's needs better or less expensively. The consumer will have the same need but will want the new product. Why? Because the new product offering will be able to connect with the customer more easily. So how do we define a market? So economics has a different definition to market, but when it comes to marketing, it is basically the set of all actual and potential buyers of a product or a service. So in marketing parlance, we define market as the combination or the sum total of the actual as well as potential buyers. So why are we talking about actual as well as potential buyers? Because actual buyers are the ones who actually going to buy the product, and potential buyers are also important because these are the buyers
who might be buying your product if they are convinced, if their needs are matched with the kind of services or the products that you offer. So these buyers share a particular need or a want that can be satisfied through the exchange relationship. So this possibility of engaging into an exchange relationship with a customer or with a potential buyer is basically leads to the concept of marketing. So what are you exchanging? You are exchanging a product and a service in return of money. That's it. So now let's have a look at the modern marketing system or a modern marketing model. So what are the major environmental forces when it comes to the modern marketing model? So we need to understand that both the company itself and its competitors will have to be dependent on the suppliers. Companies can promise good quality products only if they are having good inputs, only if they're having good raw materials, right? So the costing is largely controlled by the kind of suppliers they have. And also you need to try and understand whatever eventually goes out and is given to the customer is largely dependent on what kind of suppliers basically supply a product to these companies and competitors. So in the marketing environment, in the major environmental forces would comprise of the company and the customers. Both of them will be dependent on the suppliers. Eventually these companies and competitors will use marketing intermediaries, so called the marketing channels, to reach out to their final consumers. In turn, the company also tries to communicate with the final consumers, and so does the competitor also tries to communicate with the consumer. So the arrows represent the relationship that must be developed. This is basically marketing communication and managed to create customer value and profitable customer relationships. So this shows the main elements of in a marketing system. Marketing involves serving a market of final consumers in the face of competitors. Let's move on to the Hindi version of the same video. तो चलिए अब हम बात करेंगे चैप्टर 1 का, ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। चैप्टर 1 जो है वो क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू एंड एंगेजमेंट की ही बात कर रहा है, लेकिन इस पार्ट में हम ज्यादातर फोकस करेंगे मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम पे और मार्केटिंग मायोपिया के कंसेप्ट पे। इससे पहले कि हम मार्केटिंग मायोपिया के कंसेप्ट को समझे, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एक मार्केट ऑफरिंग क्या है। ऑफरिंग से हम यहाँ पर क्या समझते हैं? तो ऑफरिंग से मतलब है कि हर वो प्रोडक्ट या सर्विस या हो सके तो इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस जो भी कंपनी या मार्केटियर दे सकता है किसी भी कस्टमर की नीड्स या उसकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंज्यूमर्स के जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो फुलफिल होते हैं मार्केट ऑफरिंग्स के ही थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। और ये बेसिकली क्यों करे गए हैं? ये कस्टमर्स की नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करने की बात हो रही है। तो मार्केटिंग ऑफरिंग्स का मतलब ये नहीं रहेगा कि केवल फिजिकल प्रोडक्ट्स, ये टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों ही हो सकते हैं या उनका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो टैंजिबल जैसे कि आप साबुन लेते हैं, आप टूथपेस्ट लेते हैं। इंटैंजिबल जैसे कि आपने किसी से कंसल्टेंसी का सर्विस ले लिया। इनका कॉम्बिनेशन भी आपको जो है एक तरीके का ऑफरिंग बनेगा। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहां पर जो खाना खाते हैं, भोजन जो आप करते हैं, वो टैंजिबल पार्ट हो गया, और जो वहाँ की सर्विस ऑम्बियंस आप एक्सपीरियंस करते हैं वो इंटैंजिबल पार्ट हो गया। ठीक है, तो सर्विसेज में जो इंटैंजिबिलिटी होती है उसके चलते आप ओनरशिप नहीं पाते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो। एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, और भी एग्जांपल्स हैं सर्विसेज के, जैसे कि बैंकिंग, एयरलाइन, होटल, रिटेलिंग एंड बाकी के रिपेयर सर्विसेज। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑफरिंग्स आल्सो इंक्लूड अदर एंटिटीज सच एज पर्सन्स, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। अब आते हैं हम मार्केटिंग मायोपिया। तो कई बार क्या होता है दोस्तों के मार्केटियर्स या कंपनीज इतनी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट से कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में ही सोचते हैं, दूरदर्शिता खो बैठते हैं। और इसी गलती को जो है हम बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। यानी कि जब मैन्युफैक्चरर या मार्केटियर केवल और केवल अटेंशन पे करता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जो वो कंपनी ऑफर करती है, और इस बात पे ध्यान नहीं देता कि किस तरीके के बेनिफिट्स और एक्सपीरियंसेस उनका प्रोडक्ट जो है इवेंचुअली कस्टमर्स को देता है। तो मार्केटियर्स इस बात पे फोकस तो करते हैं कि वो क्या बेच रहे हैं, लेकिन वो इस बात पे फोकस नहीं करते कि वो किस तरीके की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक कंपनी जो है वो टायर बनाती है। अब वो तो यही सोचेगी कि वो टायर बनाती है, वो उनका जो प्रोडक्ट है वो टायर है, लेकिन असल में वो टायर नहीं बेच रहे हैं। देखा जाए तो कस्टमर वो टायर खरीद रहा है किस चीज़ के लिए? वो चाहता है कि गाड़ी चलाते समय उसका जो राइड का कम्फर्ट हो और जो गाड़ी पर उसका कंट्रोल हो वो बेहतर हो। तो जो कस्टमर है वो टायर खरीद रहा है एक बेहतर राइड कंफर्ट के लिए और कंट्रोल के लिए।
इसीलिए आपको टायर नहीं देखना चाहिए, आपका उससे जिस तरीके का नीड वो पूरा कर रहा है उसकी तरफ आपको फोकस करना चाहिए। तो अगर इस तरीके से मार्केटियर्स सोचते हैं कि सिर्फ टायर ही बेच रहे हैं तो हमेशा परेशानी में रहेंगे, क्योंकि अगर कोई दूसरा कंपनी इस ज़रूरत को उनसे बेहतर समझ लेगा और उनसे बेहतर दाम पे या उनसे कम दाम पर दे देगा और उनसे अच्छी तरीके से नीड पूरी कर लेगा, तो फिर कस्टमर्स जो हैं स्विच कर जाएँगे नए प्रोडक्ट की ओर और यही चैलेंज होता है और यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है मार्केटिंग मायोपिया के चलते। अब यहाँ ज़िक्र करेंगे मार्केट का डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स में और मार्केटिंग में मार्केट डेफिनेशन को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करा गया है। इकोनॉमिक्स में जिस तरीके से हम मार्केट को डिफाइन करते हैं, बायर, सेलर, प्लेस, लोकेशन, कंसिडरेशन, मार्केटियर्स जो है मार्केट को देखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स। तो यहाँ पे एक्चुअल बायर्स जो असल खरीदार हैं वो, और पोटेंशियल बायर्स यानी कि जो खरीदने में काबिलियत रखते हैं, जिनके अंदर उस प्रोडक्ट को खरीदने की कैपेसिटी है, बशर्ते आप उनको कन्विंस कर लें, तो उन सभी को मिलाकर हम बोलेंगे कि ये हमारी मार्केट है। तो ये वो बायर्स हैं जो शेयर करते हैं पर्टिकुलर नीड और वांट दैट कैन बी सैटिस्फाइड थ्रू एन एक्सचेंज रिलेशनशिप। अब ये एक्सचेंज रिलेशनशिप क्या है? यानी कि भाई आप मेरे को प्रोडक्ट और सर्विस दो, बदले में मैं आपको पैसा दूंगा। कंपनी बोलती है मैं आपको आपकी जरूरत, आपकी नीड वांट पूरा करने के लिए जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो दूंगा, आप बदले में मुझे पैसा दो। अब ये पॉसिबिलिटी रिलेशनशिप की जो है, जो एक्सचेंज के रिलेशनशिप को फैसिलिटेट करती है, यही पॉसिबिलिटी जो है कंसेप्ट जो है जन्म देती है मार्केट के कंसेप्ट को, जहां पर आपके एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स हों और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस हो जिसमें कि एक्सचेंज और रिलेशनशिप हो पाए, यानी कि आपके पास एक मार्केट अवेलेबल है। अब लास्ट में हम बात करेंगे मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम की। मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम के मार्केटिंग के मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो जो एनवायरमेंटल फोर्स है वो है सप्लायर्स, यानी कि वो लोग हैं जो आपको, कंपनी को, आपकी और आपके कॉम्पिटिटर्स को भी रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स देते हैं। कोई भी कंपनी या उसका कॉम्पिटिटर तभी कस्टमर्स को अच्छी चीज दे सकता है जब उसके पास उसके सप्लायर्स अच्छा रॉ मटेरियल, अच्छे इनपुट्स आपको दें, अच्छी हाई क्वालिटी की चीज दें। ये बात यहाँ समझाई गई है। अब ये कंपनी और कॉम्पिटिटर्स दोनों ही मार्केटिंग इंटरमीडियरीज का यूज करेंगे। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज जैसे कि मार्केटिंग चैनल्स हो गए, आपके एजेंट्स हो गए, इस तरीके से मार्केटिंग इंटरमीडियरीज पहुंचते हैं फाइनल कंज्यूमर तक। तो यानी कि कंपनीज प्रोक्योर करते हैं अपने इनपुट सप्लायर के थ्रू, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की हेल्प लेके पहुंचते हैं अपने कंज्यूमर्स तक, और कंपनी और कॉम्पिटिटर्स दोनों ही फाइनल कंज्यूमर से कनेक्टेड होते हैं। तो ये एरोज यही समझा रहे हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जरिए कॉम्पिटिटर्स और कंपनीज जो है कंज्यूमर से कनेक्टेड होती हैं, जिसके थ्रू मैनेज करती हैं कंज्यूमर और से रिलेशनशिप। और ये कम्युनिकेट करना और इस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये मेंटेन करना इनकी एक तरीके से मजबूरी है, जिसको जब ये मेंटेन करते हैं तभी कस्टमर वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी रिलेशनशिप में होगी। तो ये बात यहाँ पे फिगर 1.2 में आपको समझाई गई है। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। साथ ही साथ अगर आप डिटेल्ड कोर्स लेना चाहते हैं तो डिटेल्स यहाँ मैंने आपके सामने छोड़ दी हैं। बाकी कोर्स के डिस्क्रिप्शन नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको रेलेवेंट लिंक्स मिल जाएंगे, नंबर और हेल्पलाइन नंबर सारा कुछ यहाँ पर है। चलिए मैं आपको मिलूंगा अगले कंसेप्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और जी हाँ, अगर ये वीडियो ने आपका कुछ वैल्यू एडिशन करा है और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल इंसाइटफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल जेसी एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।